Now, friends, I want to bring to you Exodus chapter 20. प्यारे मित्रों, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय। Exodus chapter 20 निर्गमन 20वां अध्याय and verse 5. और उसका 5वां पद। Please bring your Bibles with you. If they have gathered dust, dust them up and bring them. कृपया अपनी बाइबल को जरूर लाएं। अगर उनके ऊपर धूल चढ़ गई है तो झाड़ के लाएं। Don't wait until some member of your family is dying to take that Bible and put it under the pillow. और इस बात का इंतजार ना करें कि आपका परिवार का कोई सदस्य मरने पे है और उसके तकिए के नीचे आपको वो बाइबल रखनी I है। was a cricket player, and a tennis player. मैं स्कूल के दिनों में क्रिकेट और टेनिस प्लेयर था, But I always took my Bible with me to my matches. लेकिन हमेशा मैच खेलने जाता था, अपनी बाइबल लेके जाता था। Don't be ashamed of God's holy word. परमेश्वर के पवित्र वचन से आप लज्जित ना हो। It will judge you, the presidents and prime ministers and all men. ये आपको चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी लोगों का न्याय ये वचन करेगा। Now the 20th chapter of Exodus in verse 5. निर्गमन 20वां अध्याय और 5वां पद। 4th verse says, चौथा पद कहता Thou है, shalt not make unto you any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. चौथा पद, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। The simple question is, are you the maker of God, or God your maker? एक सरल सा प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर को बनाते हैं या परमेश्वर ने आपको बनाया है? It is an insult to the living and holy God that puny people like you and me should put our hands to some sculpturing or some form making and create gods. जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का अपमान होता है जब हम जैसे इंसान किसी पत्थर की मूर्ति को बना के उसे परमेश्वर का नाम देते हैं। God's command has forbidden it, whether it is in Kerala or whether it is in Rome or whether it is in America, wherever. चाहे रोम हो, केरला हो, अमेरिका हो, हर जगह परमेश्वर का वचन इस बात को मना करता है। Thou shalt not make any image. अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। 5th verse. 5वां पद, Thou shalt not bow down thyself to them, तू उनको दंडवत ना करना, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation. जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, Showing mercy to thousands of them that love me and keep my commandments. और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। How amazing. कितनी अद्भुत बात है। When you obey God, जब परमेश्वर की आज्ञा आप मानते the हैं, blessings will continue upon generations. हजारों पीढ़ियों तक आशीषें चलती हैं। There is what is called the generational sin. पीढ़ियों का जो पाप है उसको अगर हम देखते हैं, And in many families you can see it. बहुत से परिवारों में आप इसे देख सकते हैं। The same history of suffering. कष्टों का वही पुराना इतिहास दोहराया जाता है। And you know, my friends, I have often got to deal with these chronic cases. और मुझे कई बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा। A man who lived a very wicked life as a cinema editor came to see me. और एक व्यक्ति जो
सिनेमा जगत में काम करता था, बड़ा ही दुष्ट जीवन जीता था, मुझसे मिलने He आया। said, I have deceived even my doctor. उसने कहा कि यहाँ तक कि मैंने अपने डॉक्टरों को धोखा दिया। I did not give him the fees which I owe him. मैं उसे जो फीस देनी थी वो फीस भी उस डॉक्टर को नहीं दी। And after editing my movies, और जब अपनी फिल्मों को मैं ऐसे लिखता था where I show some Rani, some queen running away with some man or something, जिसमें दिखाया जाता था कि कोई रानी किसी व्यक्ति के साथ भाग गई, I would come home मैं घर आता था and I would think that my wife was planning the same sequence. मैं सोचता था कि क्या पता मेरी पत्नी भी ऐसे ही भागने की सोच रही So हो। I would beat her terribly. तो अपनी पत्नी को बुरी तरह से मैं पीटता था। Now my two little children also have got my asthma. और मेरे जो 2 बच्चे हैं उन्हें भी वो दमे की बीमारी हो गई जो मुझे थी। When he repented, when he came and I told him, there are big rocks in your heart, sins which you must confess. जब वो मेरे पास आया और मैंने उसे बताया कि तुम्हारे हृदय में पाप के बड़े बड़े पत्थर हैं जिसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना है। Ask your wife for your pardon for unfaithful living. अपनी पत्नी से अपने बेवफा जीवन के लिए क्षमा मांगे। He went and did so. उस व्यक्ति ने ऐसा किया। He went to the doctor, वो डॉक्टर के पास गया, told the doctor, here's your money. डॉक्टर से कहा कि ये अपनी फीस आप लीजिए, अपना पैसा लीजिए। God healed him, God healed his children. परमेश्वर ने उसके सांस की बीमारी को ठीक किया, उसके बच्चों को ठीक What a किया। blessing you can bring to your children and your grandchildren. कितनी आशीष आप अपने बच्चों और पोतों के ऊपर ला सकते हैं। My father lived a very clean life. He was a sports person मेरे पिताजी ने बड़ा ही पवित्र जीवन जिया, वो एक खिलाड़ी थे and very strong. और बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे, But he followed holiness unto the Lord. और परमेश्वर के प्रति बड़ी पवित्रता से वो चले। No untruth, कोई झूठ नहीं था, no covetousness, no greed. कोई लालच नहीं था। I was brought up in a little heaven. मैं एक छोटे से ऐसे स्वर्गीय परिवार में मैं पला बड़ा। My father and mother loved the Lord and obeyed the Lord. मेरे माता पिता परमेश्वर से प्रेम करते थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे। This Bible was presented live to me in my house. मैंने अपने परिवार में, अपने घर में इस बाइबल को जीवित रूप से देखा। All the works in the Bible I began to see from my childhood. बचपन से ही बाइबल के हर एक कार्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा। Do not forget, my beloved people. मेरे प्यारे लोगों, भूलिए मत, The Bible came to you long before it came to other parts of India. हमारे भारत में अलग अलग भागों में पहुंचने से पहले बाइबल सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंची। And there are people who went out from Kerala, and sometimes I see them in distant places. और कई बार बहुत से लोगों को केरला से हमने देखा दूर दूर दूसरी जगहों में जाते हुए, And I see them also preaching the gospel. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करते देखा। But unfortunately in this country, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में we feel we need a sponsor in America. हम सोचते हैं कि हमें अमेरिका से कुछ पैसे देने वाले, सहायता करने वाले लोग मिले तब प्रचार करेंगे। Everywhere people say I need a sponsor. सब लोग कहते हैं कि हमें कोई सहायता देने वाला चाहिए। Let me tell you, the greatest sponsor under whom you can work, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा सहायता देने वाला जिसके नीचे तुम काम करते the हो, greatest committee under which you can work, सबसे बड़ी कमेटी जिसके नीचे आप काम कर सकते हैं, is the Father, Son, Jesus, and the Holy Spirit. वो है पिता, पुत्र, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। He will never die. वो कभी ना खत्म होंगे, His promises will never fail. उसके वायदे कभी खत्म नहीं होंगे। He loves you with an everlasting love. अनंत काल के प्रेम से वो आपसे प्रेम करता है। But लेकिन so many of us are putting our sins on the bosoms of our children. हम में से कितने लोग अपने पापों को अपने बच्चों के ऊपर हम डाल रहे हैं। If you turn to Jeremiah 32nd chapter यिर्मयाह 32वां अध्याय and the 18th verse, 18वां पद, this is what it says. ये कहता है, Thou showest loving kindness unto thousands, तू हजारों पर करुणा करता है
and recompense the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। The great and mighty God, the Lord of hosts, is his name. हे महान और पराक्रमी परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। What? क्या? Putting your sins in the bosom of your child? अपने बच्चों के ऊपर अपने पापों को डालना? Which father wants to do that? कौन ऐसा पिता करना चाहेगा? If you have spent your days, the days of your youth, in uncleanness, अगर आपने अपनी जवानी के समय को अशुद्धता में बिताया है you want to put that sin upon your child? और उस पाप को अपने बच्चों पर आप डालना चाहते हैं, In many parts of India today, भारत के बहुत से भागों में आजकल the government has played many tricks. सरकार ने बहुत सी चालों को चला है, And one of those tricks is to put a seal on people like they used to put seals on cows in America. जैसे गायों के ऊपर अमेरिका में एक सील लगाई जाती है, उसी प्रकार से लोगों के ऊपर एक सील लगाई जा रही है। This man is scheduled caste. ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है। What caste? कौन सी कास्ट का? Scheduled caste. शेड्यूल कास्ट का है। He has only got half a brain. इसके पास केवल आधा दिमाग है। Is that true? क्या ये सही है? No. नहीं। God made us free and equal. परमेश्वर ने हम सभी को बराबर और स्वतंत्र बनाया है। So, इसलिए these people are told, लोगों को बताया जाता है, oh, you don't have enough brains, so we will give you seats in colleges. आपके पास दिमाग नहीं है इसलिए आपको कॉलेजों में सीट दी We will जाएगी, give you gazetted posts, अच्छा अफसरों का ओहदा दिया quick जाएगा, and early promotions. अच्छा प्रमोशन दिया जाएगा। And therefore, some of these boys and girls who were brought up Christian homes have denied Christ for the sake of money. और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे जवानों ने प्रमोशन के लिए, इन चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया। One of the big officials in Delhi, दिल्ली में एक बड़े अफसर ने, he said to me उसने मुझसे कहा that he had done the same thing when I asked him, जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया मैंने भी ऐसा किया है। did you do your university study as a scheduled caste? क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शेड्यूल कास्ट के रूप में की? He said yes. उसने कहा हाँ। I said you must confess this to the government. मैंने कहा कि सरकार से अपनी इस गलती को आप मानिए, कबूल कीजिए, Because you have lied, you have denied Jesus क्योंकि आपने झूठ बोला, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है for the sake of money. पैसों के लिए। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, we have got many Judases in India. भारत में हमारे बीच में बहुत से यहूदा हैं, And what a terrible end Judas' end was. और बड़ा ही दुखदायक यहूदा का अंत था। If you turn to Exodus chapter 34, निर्गमन और उसका 34वां अध्याय, this is what the Bible says. बाइबल बताती है 12 and 14. 12 और 14वां पद। 14th verse. 14वां पद, For thou shalt worship no other God. तुम्हें किसी दूसरे को For ईश्वर, the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला He is परमेश्वर a है। jealous God. वह जल उठने वाला परमेश्वर है। We cannot deceive God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, there is no fear of God in this land, though they say they have millions of gods. हमारे देश में लोगों के भीतर परमेश्वर का डर नहीं, चाहे वो कहें कि हमारे पास हजारों देवता हैं। What kind of gods? कैसे देवता उनके पास The हैं? gods who promote oppression. जो सताव को, उत्पीड़न को बढ़ाते हैं, ऐसे देवता। That is not God. वो असली परमेश्वर नहीं। God is love. परमेश्वर तो प्रेम है। God teaches you to lift your neighbor. परमेश्वर आपको अपने पड़ोसी को उठाना सिखाता है। What is the first commandment? पहली आज्ञा क्या है?
Thou shalt love the Lord your God with all your heart, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम कर, all your soul, अपने पूरे प्राण से प्रेम कर, all your mind, अपने पूरे मन से प्रेम कर, all your strength. अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर। Are we doing that? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? Do you know what I say? मैं क्या कहता हूँ? I say one soul एक आत्मा is more valuable than the whole world. पूरे दुनिया के पैसों से बढ़कर उसकी कीमत है। That is the basis in which I work. इसी के आधार पे मैं काम करता हूँ। So, इसलिए when the Lord Jesus Christ called Peter, जब प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया, Peter followed Jesus. पतरस प्रभु यीशु के पीछे चला। But in the 5th chapter of Luke, what do you see? लू का 5वें अध्याय में आप क्या देखते हैं? He first of all had to recognize one thing. उसे सबसे पहले एक बात को पहचानना पड़ा। 8th verse. 8वां पद, When Simon Peter saw it, जब साइमन पतरस ने ये देखा, he fell down at Jesus' knees प्रभु यीशु के चरणों पे वो गिर गया and said, saying, Depart from me, for I am an unclean, sinful man, O Lord. प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं तो एक पापी अशुद्ध इंसान हूँ। Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. प्रभु मैं तो एक पापी हूँ। My dear friends, do you think it's hard to say that? प्यारे लोगों, क्या ये मुश्किल है ऐसा कहना? If you know your heart, अगर आप अपने हृदय को जानते हैं, if God opens your understanding for one moment, अगर एक पल के लिए परमेश्वर आपकी समझ को खोल दे, you will be amazed what a dreadful, degraded, depraved heart you have. तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपका हृदय कितना दुष्ट, कितना ही कुरूप, कितना गंदा है। When the Lord Jesus Christ showed me the love of the cross, जब प्रभु यीशु ने मुझे क्रूस के प्रेम को दिखाया, I told you yesterday I was a great hypocrite. मैंने कल आपको बताया मैं कैसे एक पाखंडी व्यक्ति था, But all my sins came before me. लेकिन मेरे सारे पाप मेरी आंखों के सामने आ गए। How ugly was my heart. मेरा हृदय कितना ही कुरूप था। I humbled myself. मैंने अपने आप को नम्र और दीन You किया। know, that seems to be the hardest thing for us to do. हमारे लिए तो बड़ी ही कठिन बात ये जान पड़ती है। I cannot remember making a duck, which is a 0 runs, in any cricket match which I played. मैंने अपने जीवन में किसी भी क्रिकेट मैच में शून्य या डक नहीं बनाया। But when you make a duck or a small score, लेकिन अगर आप 0 पे, शून्य पे, डक पे आउट हो जाएं, कम स्कोर बनाएं, you have a long walk to the pavilion. तो आपको बड़ी दूर लंबा चलना पड़ता है। And when you're walking, और जब आप पवेलियन जा रहे होते हैं, you don't like to lift up your head, you know. आप अपने सर को उठाना नहीं चाहते लोगों के सामने। लेकिन In life, जीवन में we make a duck, हम शून्य का स्कोर बनाते हैं, but we are so inflated. लेकिन फिर भी घमंड से फूले रहते हैं। Are you a rubber doll? Rubber doll? क्या आप एक रबड़ की गुड़िया हैं? God will take that rubber away and He will give you a backbone of steel. परमेश्वर उस रबड़ को दूर करेंगे और तुम्हें लोहे की, स्टील की कमर को देंगे। You will stand before temptation. आप परिलोभनों में खड़े रहेंगे। You will stand for righteousness. धार्मिकता के लिए आप खड़े You रहेंगे। will be never ashamed of the Son of righteousness. और कभी तुम धर्म के सूर्य से लज्जित ना होगे। Ashamed of Jesus? प्रभु यीशु से आप लज्जित होते हैं? Oh, my beloved people. मेरे प्यारे लोगों, We do not deserve Jesus. प्रभु यीशु के हम लायक नहीं।
We do not deserve Jesus. प्रभु यीशु के हम योग्य नहीं, We are not worthy of the blood which He shed for us. प्रभु यीशु के लहू के लिए जो उसने हमारे लिए बहाया हम We योग्य are नहीं, not worthy of His love. हम उसके प्रेम के योग्य नहीं, We are not worthy that He is preparing a crown of glory for us. हम इसके लायक नहीं कि जो महिमा का मुकुट हमारे लिए वो बना रहा है। What a Savior! कितना बड़ा उद्धार करता। Can we be ashamed of such a Savior? क्या ऐसे उद्धारकर्ता के लिए हम लज्जित हो सकते हैं? Can you choose imaginary, mythical creatures created by epic writers? क्या लेखों के द्वारा मनगढ़ंत कहानी के चरित्रों को हम क्या उन्हीं को सच्चा परमेश्वर मानेंगे? What did the Lord Jesus tell Peter? प्रभु यीशु ने पतरस से क्या कहा? Fear not, Peter. पतरस डर मत, From henceforth thou shalt catch men. इससे आगे तू मनुष्यों को पकड़ेगा। Here he was with a boat which was nearly sinking because of the heavy catch of fishes. यहाँ हम देखते हैं कि पतरस की नाव बड़ी मछलियों के भार से डूबने पर थी, But Jesus says to him, लेकिन प्रभु यीशु उससे कहता है, not just your stomach, केवल तेरा पेट नहीं, not just your wallet, केवल तेरा बटुआ नहीं, not just your bank balance, not your money, not your wallet, not your, but souls, Peter, souls. बटुआ और बैंक बैलेंस नहीं, You आत्माएं। must win souls. तुम्हें आत्माओं को जीतना होगा। My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, when I was a boy of 15 years जब मैं 15 साल का लड़का था and I began to preach the word of God, और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगा था, I knew I was not worthy to preach God's word. मैं जानता था कि मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। All through my university days, God touched people. और मेरे पूरी पढ़ाई के कॉलेज के दिनों में परमेश्वर ने लोगों को छुआ। And after that, और उसके बाद these last 60 years, पिछले 60 वर्ष I have been preaching God's word. परमेश्वर का वचन का मैं प्रचार कर रहा हूँ I don't regard anything as hopeless. और किसी भी बात को मैं बिना आशा के नहीं मानता। I cannot ever consider any people as hopeless. मैं किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं मानता कि उसके पास कोई आशा नहीं। If anybody is hopeless, I am that person. अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो बिना किसी आशा के है तो वो मैं था। But the Lord Jesus changed me. लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदला। The Lord Jesus is able to make you a creative person. परमेश्वर आपको एक रचनात्मक व्यक्ति बना सकते हैं। He's able to make your family a little heaven. आपके परिवार को एक छोटा सा स्वर्ग बना सकते हैं। He is able to give you tears for Kerala and for the whole world. और आपको केरला और पूरी दुनिया के लिए वो आत्माओं का बोझ और आंसू दे सकते हैं। When I saw the sin of Europe, जब मैंने यूरोप के पापों को देखा and soon after the war, a few years after the war, when I began to preach in Germany, और लड़ाई के कुछ समय बाद जब मैं जर्मनी में प्रचार करने लगा था, and I saw the people who had lost their husbands, lost their sons, lost their brothers, मैंने लोगों को देखा जिन्होंने अपने पति को, बच्चों को खोया था, lost their hands, lost their feet. अपने हाथों पाँव को जिन्होंने लड़ाई में खोया था। Oh, my heart cried out to God. मेरा हृदय परमेश्वर के सामने रोने लगा। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, you will have tears आपकी आंखों में आंसू होंगे for Kerala, केरला के लिए, for Delhi, दिल्ली के for लिए, Nepal, नेपाल के for लिए, China. चीन के लिए। You know, we are knocking on the doors of China. हम चीन के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। One of our centers is just 40 kilometers from China. हमारा एक केंद्र चाइना से 40 किलोमीटर पे है। We are waiting for the passes to be open to enter. हम इंतजार कर रहे हैं रास्तों के लिए जो चाइना के लिए खुल जाएं। I have gone to some of the hardest places in the world. दुनिया के बहुत से कठिन जगहों में मैं गया हूँ, But, लेकिन my dear friends, मेरे प्यारे लोगों, I want to do more for Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के लिए और कुछ करना चाहता हूँ। What I am doing, can you see me, is not even a centimeter.
What am I am doing is so little. जो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ बहुत कम है, But लेकिन God can use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते God हैं। can make you mighty men and women. परमेश्वर आपको परमेश्वर के लिए सामर्थी व्यक्ति बना सकते हैं। I am sure you have got greater talents than I have. मैं जानता हूँ कि आपके पास मुझसे ज्यादा कला है। God has great things for you. परमेश्वर का आपके लिए बड़ी योजना है, But He is a jealous God. लेकिन वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। Let us humble ourselves before Him. आइए उसके सामने हम अपने आप को दीन करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Let us tell God, आइए परमेश्वर से कहें, what have I done for you, Lord Jesus? प्रभु यीशु मैंने आपके लिए क्या किया है? How can I meet you with empty hands? कैसे खाली हाथ में आपसे मिल सकता हूँ? I have done so little for you, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपके लिए मैं कितना कम किया है। I have trampled on your blood. आपके लहू को मैंने रौंदा है। I have been ashamed of your holy name. आपके पवित्र नाम से मैं लज्जित हुआ हूँ। I have allowed this country to equate Jesus Christ with the creation of mythological gods. और मेरी वजह से आपको यहाँ के पौराणिक देवी देवताओं के समान माना गया है। I have not proved to this world that Jesus is risen. मैंने इस बात को साबित नहीं किया कि प्रभु यीशु जी उठा है। Lord, forgive me. प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें। Forgive all the sin in my life and heart. मेरे जीवन में मेरे हृदय के हर एक पापों को क्षमा करें। Do not allow my generational sins, my sins, the sins of my forefathers, मेरे पीढ़ियों के, मेरे दादा परदादाओं के पापों को मुझ पे मत आने दें, and my sin और मेरे पापों को to come upon my children. मेरे बच्चों पे ना आने दें। प्रभु Cleanse me. मुझे पवित्र करें, Wash me in your blood. आपके लहू से मुझे धोएं, Make me your true disciple. एक सच्चा शिष्य बनाएं। Tell Jesus now, प्रभु यीशु से आप अभी कहें, Lord, make me your true disciple. प्रभु मुझे एक आपका सच्चा शिष्य बनाएं। No more playing with sin. पापों से मैं और ना खेलूं, Wash me in your blood. अपने लहू में मुझे धोएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe you have great things for these dear people in Kerala. मैं मानता हूँ कि आपके लिए, इन लोगों के लिए बड़ी योजनाएं हैं। It is not an accident that St. Thomas came here. और संत थॉमस यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए। Lord, you had a great purpose in your heart for this whole country, for the whole of Asia. पूरे भारत देश के लिए, पूरे एशिया के लिए आपकी बड़ी योजना थी प्रभु यीशु। So you sent your gospel first to Kerala. और इसलिए अपने सुसमाचार को आपने पहले केरला में भेजा, But we have buried the gospel. लेकिन हमने उस सुसमाचार को दबा दिया। We have crucified Jesus afresh. प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ा दिया। Forgive us, हमें क्षमा करें, cleanse us, हमें शुद्ध करें and make us your true children. और अपने सच्चे बच्चे बनाएं। We ask in Jesus' holy name. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।